اس کی آنکھ کھلی تو اس کے گرد اپنی نازک سی باہوں کا حصار بنائے وہ سو رہی تھی۔ اسے اپنے قریب دیکھ کر زران کے لب بے اختیار مسکرائے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ اسے خود سے لگا گیا۔ جبکہ دھیان سامنے ایک دیوار پر لگی وال کلاک کی طرف گیا تو وہ حیران ہوا۔ دن کے 11:30 بج رہے تھے۔ اتنی دیر تک وہ سوتا رہا۔ اس نے اپنے پاس سوئی اس نازک سی جان کو دیکھا جو کل رات یقیناً بہت تھک چکی تھی اور اب اسے اپنی بھرپور نیند پوری کرنی تھی۔ ویسے بھی وہ اب اس پر مزید ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عبادت اٹھو، مجھے کپڑے نکال کر دو، بیوی والی ڈیوٹی سنبھالو، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ کتنے ظالم ہیں آپ، شادی کے پہلے ہی دن اپنی بیوی سے کام کروائیں گے۔ وہ ناراضگی سے بولی۔ اچھا تو شادی کے پہلے دن بیوی سے کام نہیں کروایا جاتا؟ وہ پوچھنے لگا، جبکہ وہ اس کی لیفٹ رائٹ میں گردن ہلتی ہوئی محسوس کر کے نفی میں سر ہلا گیا، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے سے انکار کر چکی تھی۔ تو کیا رات والی شرٹ دوبارہ پہن لوں؟ اس نے پھر سے پوچھا، جبکہ وہ کندھے اچکا گئی۔ چلو یار، میری رات والی شرٹ ہی واپس کر دو، یہی پہن لیتا ہوں۔ عبادت نے خفگی سے آنکھیں کھولتے اسے گھور کر دیکھا۔ اب کیا ہوا؟ تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ شادی کے پہلے دن کام نہیں کروا سکتا، تو میری شرٹ ہی واپس کر دو۔ اس نے اپنی شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کتنے کوئی بے شرم انسان ہے آپ، جا کر اپنی شرٹ نکال کر پہنے، میرے کیوں دشمن بنے ہوئے ہیں؟ وہ بستر میں مزید گھستے ہوئے بولی۔ ویسے تو میں تمہارا دشمن ہرگز نہیں بن رہا، کیونکہ میں تم سے پکی دوستی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تم سے اپنے کام کروا کر تمہارا دشمن بن جاؤں گا یا اپنی شرٹ واپس لے کر بن جاؤں گا، تو پھر ایسا دشمن بننے کے لیے تیار ہوں۔ اور ویسے دشمنی کی اور کون سی کیٹیگریز ہیں تمہاری نظر میں، ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ میرا خیال ہے ہمیں باہر چلنا چاہیے، بہت وقت ہو چکا ہے، پتہ نہیں سب کیا سوچ رہے ہوں گے۔ آخر اسے سب کا خیال آ ہی گیا تھا، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ شادی ہوئی ہے ہماری میری جان، ابھی ہم VIP ہیں اور اپنی مرضی سے اٹھیں گے۔ اتنا بے وقوف کوئی نہیں ہے کہ باہر سب کو پتہ ہے کہ ہم مصروف رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، وہ اسے مکہ مارتی خاموش کروا گئی۔ ارے بڑی جھگڑالو قسم کی بیوی ہو تم تو مارتی بھی ہو۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں، وہ دھمکاتے ہوئے انداز میں بولی۔ لیکن مجھے تو ابھی جاننا ہے۔ عبادت کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ چاروں باہر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ رات کو زبر کب واپس آیا اسے بالکل پتہ نہیں چلا، کیونکہ وہ تھوڑی ہی دیر میں نیند میں اتر چکی تھی۔ فلم دیکھتے ساتھ ہی باتیں کرنے کا اپنا مزہ تھا، اسی لیے جب اسے کوئی باتیں کرنے کو نہیں ملا تو تھوڑی ہی دیر میں نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو چکی تھی۔ صبح جاگی تو زبر ساتھ والے بیڈ پر آرام سے سویا پڑا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اسے کک کر کے جگایا، کیونکہ رات کو اگر وہ جلدی واپس آ جاتا تو فلم دیکھتے اور وہ ہرگز صبح جلدی نہ جاگتی، جبکہ زبر جاگنے کے بعد اسی پر سارا الزام لگا چکا تھا، کیونکہ فجر کے وقت وہ اسے کافی دیر جگاتا رہا لیکن وہ جاگی ہی نہیں، اور اس وقت وہ بڑے مزے سے یہ سارا قصہ باریک اور زورش کو سنا رہا تھا، جو اس کی باتیں سنتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں عروش اور شہیر نے بھی انہیں جوائن کر لیا۔ ارے آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے؟ ہمیں تو لگا کہ آپ لوگ اکیلے ہی کہیں گھومنے پھرنے نکل گئے ہوں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو تو یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہوا ہے۔ ان دونوں کو دیکھتے ایزا بولی۔ وہ ٹھنڈ بہت تھی نا ایزا، کمرے سے باہر نکلنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ عروش نے فوراً کہا، کوئی بات نہیں عروش، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم بھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئے ہیں، اور یہ جو یہاں بیٹھ کر تم سے باتیں بنا رہی ہے نا، یہ ابھی بستر سے نکل کر یہاں آ کر بیٹھی ہے۔ ارے بھابھی ایسے کون کرتا ہے، تھوڑا سا تنگ تو کرنے دیتی، وہ منہ بنا کر بولی تو عروش اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ برف باری رک گئی ہے، چلیں کہیں گھومنے کے لیے نکلتے ہیں، ایزا نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ زران صاحب واپس دنیا میں آ جائیں تو کہیں گھومنے کے لیے چلیں گے، فی الحال تو جناب خوابوں کی دنیا سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ باریک کو اچانک ہی زران کی یاد آ گئی، خود بھی نہیں نکل رہے اور میری سہیلی کو بھی نہیں نکال رہے، وہ بیچاری پتہ نہیں ان کے ساتھ کہاں پھنس گئی ہے۔ ہم دونوں تو اتنا انجوائے کرنے والے تھے اس ٹرپ کو، لیکن مجال ہے جو مجھے ٹھیک طریقے سے اپنی شکل بھی دکھائی ہو اس نے۔ وہ منہ بناتے بولی، ایزا میرا بچہ، اس ٹرپ میں تمہیں تمہاری سہیلی مل جائے یہ ناممکن سی بات ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس ٹرپ میں تو کم از کم اپنی سہیلی کو بالکل ہی بھول جاؤ اور اب نا ٹرپ انجوائے کرو۔ وہ ایک مصروف انسان کی مصروف بیوی ہے، زورش نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بھابھی آپ کو خدا کا واسطہ ہے اس طرح تو نہ کہے، میں نے تو کل رات کو اتنا مس کیا اسے کہ حد نہیں، اور اس مینیجر کے بچے کو پکڑ کر لائیں ذرا، میں اس سے بھی پوچھ لیتی ہوں کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا۔ رات تو کہہ رہا تھا کہ سارا دن برف باری رہے گی اور راستے بھی بلاک ہوں گے، اب برف باری بھی ختم ہو چکی ہے اور راستے بھی کھل چکے ہیں، اس کے چکر میں ہم رات کو اتنی دیر سے سوئے۔ اب ایزا کو ہوٹل کے مینیجر کی یاد آ گئی تھی۔ یار اس نے موسم کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا ہوگا،
यहाँ का रहने वाला है तो तुक्का मार दिया होगा। खैर छोड़ो, अब तो रास्ते खुल चुके हैं ना, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, वो उसे खुश करते हुए बोला। जब जरान और इबादत भी कमरे से बाहर निकल कर उनके पास आ बैठे। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है भाई, वो भी हमारे बगैर। जरान वहीं आग के करीब बारीक वाली जगह पर आ बैठा। हम तुम लोगों के बगैर जाने का इरादा हरगिज़ नहीं रखते थे। तुम लोग हमारे साथ चलो, रास्ते खुल चुके हैं और मैनेजर ने कहा है कि हम लोग कहीं भी बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं अब। बारिक ने तफसील से बताया, जिस पर उसने हाँ में सर हिलाया। क्या बात है, मतलब मैं अपनी बीवी को लेकर कहीं भी घूमने के लिए जा सकता हूँ? वो इस अंदाज में बोला कि सब उसे घूर कर रह गए। कमन यार, अब आप ये मत कहिएगा कि हम यहाँ पर भी साथ मिलकर किसी स्कूल ट्रिप की तरह घूमने जाएंगे। हरगिज़ नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता हूँ। वो बड़े मज़े से बोला। ठीक है, तू जो दिल में आए वो करो। मैं तो जो दिल में आए वो करो, मैं भी अपनी बीवी के साथ जा रहा हूँ। ज़बर तो अपनी बहन को ले जा और शहीर तो अपनी बीवी को ले जा। हम फजूल में इसका इंतज़ार कर रहे थे जागने का। वो जोरिश का हाथ थामे उसे लिए सीढ़ियाँ उतर गया, जबकि वो अरे अरे करती रह गई। सो मैं भी अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ। शहीर ने अरूज को उठने का इशारा किया तो वो खामोशी से उसके साथ उठकर उसके पीछे जाने लगी, जबकि ज़बर आहिस्ता से इज़ा के बूट पर पैर मारने लगा, जो कि ज़बर के ज़बरदस्त मोटे कपड़े पहनने की वजह से गुड्डा बनी बैठी हुई थी उस वक्त। हम पास से घूम कर आएंगे, सर्दी ज़्यादा है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो इज़ा को खड़ा करते हुए उसके शानों पर हाथ रखता उसे लेकर जा चुका था, जबकि एक इबादत उन सबको देखते रोनी शक्ल बनाकर अब जरान को देख रही थी, जो बड़े मज़े से कुर्सी की पुश से टेक लगाए सबको बाय बाय कर रहा था। मुझे नहीं जाना आपके साथ किसी भी लॉन्ग ड्राइव पर, सब जाते साथ तो कितना मज़ा आता। वो पैर पटकते उठकर खड़ी हो गई, जबकि जरान अगले ही लम्हे उठते हुए उसे अपने बाजुओं में उठा चुका था। ये आप क्या कर रहे हैं जरान, हम रूम में नहीं हैं, वो घबरा कर उससे कहने लगी, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता 5-6 सीढ़ियाँ उतर चुका था। मुझे ये सब कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि मैं अपनी बीवी के साथ एक बहुत ही मज़े की ड्राइव इंजॉय करना चाहता हूँ। वो गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोल रहा था, जबकि इबादत उसे ठीक से घूर तक नहीं पा रही थी। शर्म से उसका बुरा हाल हो रहा था। जबकि वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलता उसे अंदर बिठाता जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। तुम्हें ये पहाड़ पसंद है अरूश? वो गाड़ी चलाते उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, जिसका ध्यान पूरी तरह से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में लगा था। हाँ, बहुत ज़्यादा, मुझे पहाड़ों से इश्क है। मुझे हमेशा शौक़ था ऐसी वादियाँ देखने का, और इज़ा कश्मीर बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। अब तक जितना देखा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा नहीं था कि जिन पहाड़ों से मुझे इश्क है उन्हीं पहाड़ों में आकर मेरी ज़िंदगी शुरू होगी। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हम जो अपनी ज़िंदगी के लिए सोचें वही हमारा मुकद्दर बने। तुम्हें यहीं पर आना था मेरे पास, क्योंकि तुम्हें इन पहाड़ों से इश्क है और मुझे तुमसे। वो इस अंदाज में बोला कि अरूज का सारा ध्यान पहाड़ों से हटकर उसकी तरफ हो गया। आपको मुझसे? वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो शहीर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। हाँ अरूज, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आज से नहीं बल्कि जब से तुम्हें देखा था उस दिन से। जिस दिन पहली दफ़ा तुम यूनिवर्सिटी में आई थी, मुझे कुछ लोगों ने तुम्हारी तरफ मुतवज्जो किया था कि तुम यूनिवर्सिटी की नई लड़की हो। वो सब तुम्हारे साथ कोई प्रैंक करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। तुम इतनी सहमी हुई थी, डरी हुई थी कि मैंने सबसे यही कहा कि तुम्हें बिल्कुल ना छेड़ा जाए, और उन लोगों ने मेरी बात मान भी ली। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग मुझे तुम्हारे नाम से छेड़ने लगे, तंग करने लगे। अक्सर तुम्हारा नाम लेकर अपनी बातें मुझसे मनवाते थे। एक दिन किसी ने मुझे आकर बताया कि तुम्हें नोट्स की ज़रूरत है। मेरे पास पिछले 4-5 साल के नोट्स पड़े थे। तुम एक लाइक स्टूडेंट थी, मैंने सोचा मैं अपने नोट्स तुम्हें दे देता हूँ। तब भी तब भी उन सब ने मुझे बहुत तंग किया। मैं तुम्हें वहाँ नोट्स देने आया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझसे पहले कोई लड़का तुम्हें छेड़ चुका है वहाँ पर, और तुमने गलतफहमी की बिना पर मुझे थप्पड़ मार दिया। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। वो मेरा यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था। यूनिवर्सिटी के 4 साल मैंने बहुत अच्छे से गुजारे थे। किसी लड़की के साथ अफेयर तो दूर की बात, किसी लड़की के साथ मेरा नाम तक लेना मेरे ग्रुप के लोग गुनाह समझते थे। ऐसे में किसी लड़की का मुझे थप्पड़ मारना पूरी यूनिवर्सिटी के सामने आ गया। एक लम्हे में मेरी 4 साल की इज्जत खाक में मिल गई। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि तुम्हें किसी ने मुझसे पहले तंग किया था। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यूनिवर्सिटी ट्रिप पर हमारी मुलाकात दोबारा हो जाएगी। तुम वहाँ अपने किसी कज़न एहसन के साथ थी, लेकिन मैंने किसी तरह का रिएक्ट नहीं किया। इस तरह से दिखाया जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं। लेकिन फिर जब वहाँ उस हॉस्टल के बाहर हम सब की वापसी हुई और तुम्हें वहीं पर छोड़ दिया गया, तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने उन लोगों को बताने की कोशिश भी की कि तुम अभी तक बस में सवार नहीं हुई, लेकिन उस टीचर और बस ड्राइवर ने मेरी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। मैं समझ गया था कि कोई गेम है। वो बस ड्राइवर बार बार एहसन की तरफ देख रहा था, और फिर उस टीचर ने भी मुस्कुरा कर देखा। पता नहीं
कहीं वो लोग क्या करने जा रहे थे, उनका क्या इरादा था। लेकिन मैं वहीं बस से उतर गया। वैसे मैं वहाँ से आज़ाद कश्मीर आने का इरादा रखता था, मुझे रास्ते में ही उतर जाना था, लेकिन मैं वहीं कराची उस होटल के करीब उतर गया। मैं वापस वहाँ आया तो मैंने तुम्हें वहाँ परेशानी से आगे पीछे होते देखा। किसी ने तुम्हें बस स्टॉप पर जाने के लिए कहा, मैं तुम्हारे पीछे ही रहा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाओ। ये मेरी मोहब्बत ही थी अरूज, जो मुझे वहाँ से जाने नहीं दे रही थी। तकरीबन 2 घंटे बाद वो बस वापस वहाँ आई तुम्हें लेने के लिए। जब उस टीचर ने कहा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की वजह से ये बस मिस कर रही थी, फिर उस ड्राइवर ने भी तुम्हें इस तरह से बातें सुनाई और एहसन ने भी तुम्हें यही सब कुछ कहा। मुझे अंदाज़ा था कि एहसन का इरादा तुमसे शादी करने का है। फिर मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ। जब तुम बस के ऊपर चढ़ गई तो मैं वहीं से पलट कर आ गया, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इन सब चीज़ों का शिकार हो जाओगी। उस दिन मैं बार बार तुम्हारे सामने इसलिए आ रहा था ताकि तुम खौफज़दा ना हो, तुम्हें ये लगे कि कोई जानने वाला तुम्हारे आसपास है। लेकिन मैं ना तो तुमसे मुखातिब हुआ और ना ही तुम्हारे करीब आकर बैठा कि कहीं तुम मुझे मज़ीद गलत ना समझो। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग इतने सालों से तुम पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे थे, और अगर मुझे अंदाज़ा होता तो मैं कब का तुम्हारे घर आ चुका होता। वो तफसील से बता रहा था। जब अरूज ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, और मेरे घर आकर क्या करते? जो इल्ज़ाम 4 साल बाद लगाया वो पहले लगा देते। मेरे बाप का सर जो 4 साल के बाद झुकाया है वो पहले झुका देते। मेरे किरदार की धज्जियाँ उड़ा देते। 4 साल से मैं लड़ रही थी, सबको बता रही थी कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन तुमने आखिर क्या किया? तुमने आखिर क्या किया? मुझे सबकी निगाहों में गुनहगार बना दिया। वो बेहद गुस्से से बोली, अरूज, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे बाबा के कहने पर किया तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन ये सच है। ऐसा कहने के लिए मुझे तुम्हारे बाबा ने ही इशारा किया था, क्योंकि तुम्हारे ताया अब्बू और उनकी फैमिली खुलकर सामने आ चुके थे। वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा घर हासिल करने के लिए तुमसे शादी करना चाहते थे। उस घर को जहेज़ के तौर पर तुमसे लेना चाहते थे। उन लोगों का लालच वो घर था, उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं था। और जब तुम्हारे बाबा को ये बात समझ आई तब उन्होंने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा, ताकि वो देख सकें कि उनके ख़ानदान वाले कितना गिरते हैं। तुम यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि शादी करने के लिए तो वो एहसन भी तुमसे तैयार था। अगर उन्होंने तुम्हारी शादी ख़ानदान में करनी होती तो क्या वहाँ हाँ ना कर देते? और अगर वो तुम्हारा निकाह मुझसे एक गैर अजनबी इंसान और अगर वो तुम्हारा निकाह मुझ जैसे एक गैर अजनबी इंसान से करवा सकते हैं तो अपने भतीजे एहसन से क्यों नहीं? क्योंकि वो उनकी नीयत समझ चुके थे। तुम मेरी बात सुनने या समझने की कोशिश ही नहीं कर रही अरूज। तुम अपने बाबा से बात करो, वो तुमसे नाराज़ नहीं है। उनका नंबर दो मुझे, मैं तुम्हारी उनसे बात करवाता हूँ। प्लीज़ शहीर, बंद करो मेरे साथ खेलना, मेरे जज्बात के साथ खेलना बंद कर दो अब। मेरे बाबा ने झुके सर के साथ मुझे तुम्हारे साथ रुखसत किया है। वो खुश नहीं थे। मैं अपने बाबा को खुशी देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से उन्हें दुख दिया। खुदा के लिए मुझे झूठे दिलासे देना बंद कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस टॉपिक को ख़त्म करो। वो सचमुच में हाथ जोड़ गई थी उसके आगे, जबकि शहीर नफ़ी में सर हिला गया। आखिर ये लड़की उस पर यकीन क्यों नहीं करती थी? हनीमून से वापस जाते उसे वो कराची ले जाने वाला था। अपने बाबा से मिलकर वो अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर ले तभी बेहतर था, वरना आगे जाकर ये किस्सा कोई और रंग ही लेने वाला था और उसे अपनी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी। वो अरूज के साथ एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहता था, गलतफहमियों के बीच में नहीं। वो ये मामला ही हल कर देना चाहता था। यहाँ से जाते ही वो कराची जाने का फ़ैसला कर चुका था।